So good afternoon, everyone. Hope you all are doing well. Welcome again. And in our last session, we have seen different methods of separation like evaporation, distillation, sublimation, filtration. Okay. Then fractional distillation. Now in this session, we will learn something more, that how can we obtain different gases from air. Okay. So for that, air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation. So air is a homogeneous mixture. Why we are calling it homogeneous mixture? Because all the gases mixed up homogeneously. Okay, सभी gases एक दूसरे में homogeneously mixed up हो गए हैं, and that's why we are calling air is a homogeneous mixture. Okay, so it can be separated into its components by fractional distillation. तो उसको अगर separate करने हैं उसके components को, तो we have to do the method of fractional distillation. The flow diagram shows the steps of the process. तो आपको नीचे डायग्राम दिया हुआ है बेटा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एयर. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. सो आप उसको कंप्रेस करो, बराबर. सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है, एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. कंप्रेस करो और कूल डाउन करो, तो उसके लिए हमको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डिक्रीज टेम्परेचर. टू कूल डाउन द एयर वी हैव टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर. नाउ इट will be converted into liquefied air. So it will now the air is liquid. So liquid air now allow to warm up slowly in fractional distillation column. तो in previous session we have seen that the fractional distillation column हमने देखा था, बराबर. ऊपर आप ये फिगर में देख सकते हो, बराबर. in this figure, see fractionating column you can see. So इस column में हमको उसको slowly warm up करना है, and gases get separated at different heights. तो as per their boiling point all gases will be separated. Okay, उसके टेम्परेचर के हिसाब से वो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट होंगे. So you can see that oxygen, okay, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस है -183. ओके, आर्गन का है -186, एंड नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इट इज -196. नाउ परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, मतलब आपको उसका कितना वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम कितना मिलेगा एयर में, जितनी आपने एयर ली है उसमें. तो इट विल बी 20.9%, that is 21% almost. Okay, it is oxygen. You will get 0.09%, 0.9% it is argon, and you will get 78.1% nitrogen. Okay, so we are getting a 78% nitrogen in the air, and here also the amount we have taken, air amount we have taken from this air, we will get 78.1% nitrogen, 0.9% argon, and 20.9%, that is the almost 21% oxygen. Understood? So if we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. अगर हमको एयर में से प्योर ऑक्सीजन ही चाहिए, so for that first we have to separate all the gases from the air. Now the air is completely compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. तो सबसे पहले हमको क्या करने पड़ेगा, उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा. तो for that we have to compress it. कंप्रेस कैसे करोगे, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, राइट. एंड व्हेन यू कूल डाउन इट, सो इट विल डाउन द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर डाउन होगा. अंडरस्टूड? and it will be converted into liquid. This liquid air is allowed to warm up slowly, और उसको धीरे धीरे warm up करो, गर्म करो, हीट करो, बराबर, in a fractional distillation column where gases get separated at different heights depending upon their boiling point. तो अपने boiling point के हिसाब से अलग अलग लेयर पे आपको अलग अलग gases मिलेंगे. So in next figure easily you can see this is the separation of components of air. So for that once again I am explaining this experiment to you. So यहाँ पर एंटर, यहाँ से एयर एंटर होती है, देखिए आप, बराबर. सो एयर इन यहाँ से जाएगी. सो बाय कंप्रेसिंग द एयर, बराबर, दैट मीन्स गिविंग मोर प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर, वी कैन कंप्रेस द एयर. यहाँ से कंप्रेस होगी, दोनों तरफ से पिस्टन
बराबर, खींचेगा तो इट विल बी कंप्रेस्ड एंड देन इट विल गोज अप, यहाँ जाएगी, बराबर. इट इज हॉट एयर, देन इट विल गो इन दिस सेक्शन. सो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज दिस कॉइल? तो दिस कॉइल इज फ्रीजिंग कोल्ड वाटर. इसमें फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी सर्कुलेट होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस कूल वाटर द एयर विल कूल डाउन. अंडरस्टूड एवरीवन? वो एकदम कूल होती है, बराबर एयर. फिर उससे क्या होगा, चलो फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर कहां पर जाएगी, यहाँ पर सेपरेटर के पास, बराबर. तो सेपरेटर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल, यस वो सेपरेट होगा. और यहाँ से क्या होगा बेटा, यस लिक्विड एयर विल गो इन दिस चैम्बर, बराबर. लिक्विड एयर आगे जाएगी ऐसे. चलो देन यहाँ से क्या होगा, यू कैन सी दैट 3 लेयर्स, नाइट्रोजन आउट, देन आर्गन आउट, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिलेगा. तो आपको एकदम प्योर ऑक्सीजन मिल जाएगा, राइट. अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यू विल गेट एज अ ड्राई आइस, दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. व्हाई? द एयर इज वेरी कूल. सो फॉर दैट लिक्विफाइड जो है, बराबर एयर की है आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट उसमें से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके. और जो लिक्विफाइड है एयर है आगे जाएगी. नाउ एज पर द बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है तीनों में से, सबसे ज्यादा, तो वो सबसे डाउन मिलेगा. तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स. ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, बोलो फटाफट कौन सा सबसे ज्यादा है. वेरी गुड, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, बराबर. व्हेन यू टेक, वी आर टेकिंग माइनस वैल्यूज, बराबर, तो जो सबसे कम वैल्यू इट इज सबसे ज्यादा, बराबर. सो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, राइट. वेरी गुड. अभी हम सब 6 स्टैंडर्ड में जाएंगे, 6, 7 स्टैंडर्ड में, बराबर. तो माइनस वैल्यू है, तो वो क्या हुआ, सबसे कम हुआ बेटा नाइट्रोजन. सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है -196. इट इज लेस वैल्यू ऑक्सीजन. वेरी गुड अनुज, ओनली अनुज हैज गिवन राइट आंसर, बराबर. ऑक्सीजन इट इज, उसका सबसे ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आते आते टाइम लगेगा. उससे पहले नाइट्रोजन का सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आएगा. तो यू कैन सी, जस्ट ये लेयर देखो फिर भी आपको पता चल जाएगा. देखो नाइट्रोजन सबसे पहले निकलता है 196 वाला. उसके बाद उससे थोड़ा कम किसका, आर्गन का है, तो सेकंड लेयर में वो है. और थर्ड लेयर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, वो थर्ड निकल रहा है, इट इज ऑक्सीजन. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम. Okay, very good. Just write in your chat box if you have any problem or raise your hand. Okay, fine. Now, how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? आपके पास एक impure sample है, that is जो pure नहीं है, pure copper sulfate नहीं है. तो from that mixture, for that sample, how can you obtain pure copper sulfate? Okay, so for this we will do one more activity here. Take some approximately 5 gram impure sample of copper sulfate in a china dish. Now dissolve it in minimum amount of water. तो उसको आपको dissolve करना है water में. Now filter the impurities out. तो आप filter करोगे तो जितनी भी impurity solid नहीं होगी वो filter हो जाएगी, जो dissolve है उसके साथ निकल जाएगी. Now evaporate water from the copper sulfate solution so as to get a saturated solution. So already जो water आपने ऐड किया है थोड़ा ज्यादा है, तो you have to evaporate water. तो जो भी excess water होगा, it will be evaporate from the solution. Now you will get saturated solution. Cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. तो एक दिन के लिए आप undisturbed रख दो उसको, उसके ऊपर filter paper cover कर दो. Now you will obtain the crystals of copper sulfate in the china dish. तो china dish में आपको crystals जैसा दिखेगा. It is pure copper sulfate crystals. Okay, this process is called crystallization. Okay, उसको crystallization बोलते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में हमको crystals मिलते हैं. क्रिस्टल मतलब पता है ना आपको, बराबर. क्रिस्टल का मतलब पता है आप सबको. क्रिस्टल्स मतलब आपको पीस ऑफ दैट प्योर सब्सटेंस, छोटे छोटे पीसेस, मतलब क्रिस्टल के जैसे, जैसे आपने कण कही है, ना ना, बराबर. सो यू विल गेट लाइक दिस. नाउ द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड. तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्यों यूज होती है, तो टू प्यूरिफाई सॉलिड, सॉलिड को प्योर करने के लिए. फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट. तो सी वाटर है, बराबर. वी वांट सॉल्ट,
प्योर सॉल्ट चाहिए, लेकिन सी वाटर में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, वो उसमें सिर्फ सॉल्ट है ऐसा नहीं है, बराबर, और भी ज्यादा खराबी सब बहुत सारी रहती है उसमें. सो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड. तो इस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं. क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस that separates a pure solid in the form of its crystals from the solution. बराबर, तो हमको क्रिस्टल फॉर्म में वो प्योर सॉलिड मिलता है उसके सॉल्यूशन में से. अगर आपने किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया है, फ्रॉम दैट सॉल्यूशन यू आर गेटिंग द प्योर सब्सटेंस. ओके, यू आर गेटिंग प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. बराबर, क्रिस्टल के फॉर्म में आपको अपना प्योर सॉलिड मिल जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन. चलो अभी आप इवेपोरेशन करोगे, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम हम जो सी वाटर है उसको इवेपोरेशन करते हैं फिर भी तो हमको सॉल्ट मिलता है, बट दैट इज नॉट प्योर. The other impurities are also present with that salt. Understood? But in the process of evaporation, you will get the pure salt. Okay? So evaporation is better than crystallization is better than evaporation. Why? So some solids decompose, or some like sugar, barabar, many get charred on heating to dryness. चलो, some solid decompose. बराबर, तो कुछ तो सॉलिड ऐसे जो डिकम्पोज हो जाते हैं, बराबर, और दूसरे कैसे हैं, लाइक शुगर में गेट चेड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस. तो जब आप शुगर को गर्म करते हो, चलो क्या हो गया, अगर आप शुगर को हीट करोगे तो क्या होगा बेटा उसमें, चेड मतलब किसी को पता है, एनीवन? इट विल बिकम ब्लैकिश, उसका कलर चेंज होता है, राइट, इट विल बिकम ब्लैकिश इफ यू हीट द शुगर, राइट. तो सम सॉलिड डिकम्पोज, वो डिकम्पोज भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल शुगर, उसका कलर चेंज होता है, ब्लैकी हो जाता है. तो दैट्स व्हाई, बराबर, जब आप ड्राई करने जाते हो तो ऐसा होता है, तो दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज नॉट बेटर फॉर दिस. एंड सम इम्प्योरिटीज may remain dissolved in the solution even after filtration. So for example, आपने फिल्टर करके उसको अलग किया, फिर भी जो dissolved impurity है, it will be remain in that solution. Understood? On evaporation, this contaminates the solid. और जब evaporation होता है तो वो solid के साथ जो हमको प्योर चाहिए वो नहीं मिलता है, वो रह जाता है. Understood? Once again हम लिखते हैं example. Okay, one. Okay, Yash, who is Crucial? He is in your class, beta. Yash, write in your chat box, beta. Crucial is in your class. Yash, okay. Already I have admitted him in this Zoom meeting. Okay, no worry. Crucial, you are welcome now. Okay, let's continue, beta. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. तो आप उस solution को filtrate करते हो, filtration करते हो, उसके बाद भी कुछ impurities इसमें रह जाती है. और जब इवेपोरेशन करोगे तो इम्प्योरिटीज उसके साथ, वो सॉलिड के साथ ही रहेगी. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू फिल्टर सी वाटर, सो सम इम्प्योरिटीज विल बी रिमेन विद दैट वाटर. व्हेन यू इवेपोरेट इट, ओके, देन द वाटर ओनली इवेपोरेट, बट जो सॉलिड इम्प्योरिटी है वो तो सॉलिड के साथ रह ही जाएगी. सो इट इज नॉट बेटर. अंडरस्टूड? सो दैट क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन. नाउ एप्लीकेशन कहां पर यूज होता है ये क्रिस्टलाइजेशन? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. तो सी वाटर में से जो सॉल्ट हमको मिलता है, इसके लिए हम दिस क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं. देन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम. एलम का मतलब पता है ना सबको, फटकड़ी, जिन्हें फटकड़ी बोली आपने, बराबर. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम impure sample. तो कोई भी impurity हो એની અંદર તમે alum નાખો તો you can get separated alum, okay, from this solution by the method of crystallization. So thus by choosing one of the above methods, तो बहुत सारी मेथड हमने देखी. Just write down in your chat box which method we have seen. Yes, filtration, winnowing, then hand picking, very good. Then कौन सी दिखी और? Evaporation, crystallization, distillation, sublimation. Okay, very good. Chromatography, very good. Fractional distillation. So many methods we have seen to separate substances. Okay, so by choosing one of the above methods according to the nature of the components,
ऑफ ए मिक्सचर। तो उस मिक्सचर में किस तरह के कंपोनेंट्स है उसके नेचर के हिसाब से वी हैव टू यूज वन मेथड एंड वी कैन सेपरेट सब्सटेंसेस। ओके, with advancement in technology many more methods of separation techniques have been devised। तो अभी तो नई नई टेक्निक्स भी बहुत सारी ऐसे निकली है, बराबर। तो एडवांस टेक्निक भी अभी तो बहुत सारी चल रही है, बराबर। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर बॉक्स। वाटर बॉक्स मतलब पता है ना आपको, जहां से वाटर सप्लाई होता है, मेन वाटर सप्लाई स्टेशन। ओके, तो वहां से सबके घर में ड्रिंकिंग वाटर आता है। अ फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वाटर बॉक्स इज शोन इन फिगर 2.13। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस involved to get the supply of drinking water to your home from the water box and discuss it। चलो, अब हमको वो डायग्राम देखना है कि जब वाटर सप्लाई होता है फ्रॉम वाटर बॉक्स टू अवर होम तो कौन कौन सी प्रोसेस उसके पर होती है, बराबर। चलो, तो सी दिस डायग्राम। चलो, एनीवन कैन टेल मी फर्स्ट। चलो, क्या होगा फर्स्ट? फर्स्ट रिजर्वियर में से वाटर पास हुआ, चलो सेडिमेंटेशन टैंक में गया, वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्या होगा? फिल्ट्रेशन में से, अरे सॉरी, सेडिमेंटेशन में से। द सॉलिड व्हिच आर हैवी दे विल सेटल डाउन, तो सेडिमेंटेशन मेथड होगा वहां पर। चलो आगे क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप बोलो, सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा? यस, वेरी गुड, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, चलो क्या होगा उससे? सेंट्रीफ्यूज। ओके, चलो उससे आगे क्या होगा? अभी फिल्ट्रेशन टैंक में गया तो फिल्ट्रेशन होगा वहां पर, राइट। देन क्लोरिनेशन, यस, क्लोरिनेशन टू रिमूव बैक्टीरिया, वेरी गुड। एंड फिर प्रेशर आएगा उसके पर से और टैंक में से जाके सबके घर में पानी बाय टैप आएगा। ओके, बाय टैप आएगा। सो बाय यूजिंग टैप वी कैन गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर। अंडरस्टूड बेटा? चलो, अभी यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है बेटा? एनीवन? राइट इन योर चैट बॉक्स बेटा इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, any query? Very good, very good. So all methods we have cleared here. Pawan, what's your problem beta? Write in your chat box. Pawan, chat box में लिखो पवन। ओके, आपने रेज हैंड किया इसलिए मैंने पूछा बेटा पवन। ओके, नाउ वी विल सी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो आप बहुत पहले से बहुत आगे की स्टैंडर्ड में भी 7-8 में भी सीख ही गए हो what is physical changes and what is chemical change। okay, so in the previous chapter we have learned about a few physical properties of matter, the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties, बराबर। तो that can be observed, आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये सब प्रॉपर्टी के, कलर कैसा है, हार्डनेस कैसी, रिजिडिटी कैसी है, यू कैन मेजर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज। चलो, इंटर कन्वर्जन दैट मीन्स एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। तो ऐसा करने से उसके कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं आएगा उस सब्सटेंस के, जब उसका स्टेट चेंज होगा, एज वेल एज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी विल आल्सो नॉट बी चेंज्ड। ओके, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर। चलो एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो वाटर में बेटा क्या होता है? तो व्हेन यू कूल डाउन वाटर बिलो 0, राइट, क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। तो आइस और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। अंडरस्टूड? if you boil water it will be converted into vapor, so it is a gaseous state। then also water और उसका जो gaseous state है water vapor, उस दोनों की chemical property में कोई change नहीं आएगा। that means once again I am telling you it is only physical change, no chemical change। okay, जब भी state change होता है matter का it is a physical change, बराबर, क्योंकि उसमें कोई chemical nature में फर्क नहीं आता है। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same।
भले उसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसियस है, लेकिन दिस थ्री हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. So it is only physical change, no chemical change. Okay. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. चलो, अभी हमने वहां पर क्या देखा कि तीनों स्टेट अलग अलग है वाटर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. देन ऑल्सो दे आर केमिकली नॉट चेंज्ड. बराबर, केमिकली वो डिफरेंट नहीं है. बराबर, बट सेम वे. देखो ये ऑयल और आपने वाटर लिया, वो दोनों लिक्विड है, but then also their chemical characteristics are different. वो chemically totally different है, right? So they differ in odor and inflammability. Odor मतलब उसका स्मेल भी अलग है एक दूसरे से, एंड inflammability मतलब किसको पता है, बोलो. Inflammability. Okay, so capability to burn. Very good, Arshan. Okay, capability to burn, capability to exhaust, मतलब so that combust, capability to combust होने की उसकी capability, उसको inflammability कहते हैं कि वो कितनी easily वो burn हो सकता है, right? We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. तो oil देखो क्या करेगा, उसको fire मिल गई तो बर्न करने लगेगा ना. बराबर, और वाटर फायर को एक्सटिंग्विश करता है. दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, नेचर बिल्कुल अलग है. इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. और यही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर और ऑयल को एक दूसरे से अलग करती है. बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. बर्निंग इज अ केमिकल चेंज ना. यस, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबस्टन होता है. इट इज अ केमिकल चेंज. बराबर, कि किसी भी चीज को आप बर्न करो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल? चलो, हमने वुड बर्न किया, क्या हुआ, पूरा चेंज हो गया, आपको ऐश मिल जाएगी, पूरा सब्सटेंस नया मिल जाता है ना. तो इट इज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या होता है, जनरली आपको नया सब्सटेंस मिलता है. बराबर, ASS नहीं बेटा, ब्रजशाह. ASS का मतलब होता है डोंकी. बराबर, ASH. ओके, no worry. So chemical change brings a change in the chemical properties of matter and we get new substances. बराबर, तो जब भी chemical change होता है we are getting new substance. A chemical change is also called a chemical reaction, जिसको हम chemical reaction भी बोलते हैं, right? So during burning of a candle both physical and chemical changes take place. बराबर, तो जब burning of candle होता है, candle burn होती है, तो both physical and chemical दोनों changes होता है. How physical and how chemical? Who will tell me? It is a burning process, so it is a chemical change. वो तो है ही, चलो. बराबर, पर physical change कैसे हुआ, उसकी size change हुई burning के after burning, the size will be changed or not, candle की, right? So it is a physical change also. Very good. बराबर, चलो. Any problem till here बेटा? यहाँ तक कोई problem है आपको? Physical and chemical changes are very easy. Very good. Okay. Now, what are the types of pure substances? Pure substances क्या है? बराबर, तो on the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. तो उसकी जो chemical composition है कि किस चीज से वो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, बराबर, उस के बेसिस पर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है. वन इज एलिमेंट्स and second one is compounds. Okay, so first one we will see about elements. So Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. तो रॉबर्ट बॉयल ने वो साइंटिस्ट थे कि जिसने फर्स्ट टाइम, बराबर, एलिमेंट ऐसा वर्ड यूज किया था इन 1661. ओके, एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर in 1743 to 94, बराबर, 1743 to 1794, a French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of an element. तो उसकी experimentally जो definition दी है वो किसने दी है? एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने. Okay, so he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. तो अभी वो
और क्या बोल रहे कि एलिमेंट के साथ लास्ट फॉर्म आ गया है, किसी भी मैटर का वो लास्ट फॉर्म है कि अब उसको नेक्स्ट आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट? अभी वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ऐसे लास्ट फॉर्म है वो, बराबर, विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, बराबर। सो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अभी उससे ज्यादा सिंपलर नहीं, वो सिंपलेस्ट हो गया, उससे ज्यादा सिंपलर फॉर्म नहीं मिलेगा बाय केमिकल रिएक्शन। आप कैसी भी केमिकल रिएक्शन कर लो, बराबर, तो एलिमेंट से आगे आपको कुछ भी सिंपलर फॉर्म नहीं मिलने वाला है, बराबर। तो ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ एलिमेंट। व्हाट इज एन एलिमेंट? तो इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, okay, that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Okay, so elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. metal आपको पता है, non-metals पता है, और metalloids क्या है? which has the property of both metals and non-metal. थोड़ी property metal जैसी है, थोड़ी non-metal जैसी है, तो they are called metalloids. Okay, so metals usually show some of or all of the following property. तो चलो metals की property देखते हैं, very easy, आपने 8th standard में 7th standard में भी देखी है बेटा ये properties। तो they have a luster, that is shiny surface, उसकी surface shiny होती है, it is a they have lustrous surface, okay, they have silvery gray और golden yellow color। जनरली उसका कलर मेटल का सिल्वरी ग्रे होता है और गोल्डन येलो या तो होता है, बराबर। हाँ, दूसरे कलर होते हैं लेकिन जनरली ज्यादा ये कलर होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर malleable, that is when you hammered metals they can be converted into sheets, okay, malleable। then they are ductile, they can be drawn into wires, जब आपको उसमें आप उसमें उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, that is they are malleable। they are sonorous, that means they are making ringing sound, barabar, so when they are heated। now examples of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc। mercury is the only metal that is liquid at room temperature। तो room temperature पे आपको mercury almost कौन से फॉर्म में मिलता है? तो liquid फॉर्म में मिलता है, right? non metals usually show some or all the following property। तो नीचे जो प्रॉपर्टी दी है generally it is of non metals, तो they display a variety of colors, तो बहुत सारे कलर में मिलते हैं non metals। they are poor conductors of heat and electricity। they are not lustrous, मतलब उसकी surface shiny नहीं होती है। they are not sonorous, मतलब when you ring it, when you strike it, they are not producing sonorous sound। और malleable भी नहीं है, ductile नहीं है, right? that means आप उसमें से वायर्स नहीं बना सकते हैं, आप उसकी शीट्स नहीं बना सकते हैं, राइट? नाउ एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, बराबर। कार्बन में है कोल, कोक, वो सब भी नॉन मेटल्स है, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। some elements have intermediate properties between those of metals and non metals। intermediate, that means दोनों के बीच की प्रॉपर्टी, थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल्स की है, थोड़ी नॉन मेटल्स की है, बराबर। तो थोड़े कुछ ऐसे भी एलिमेंट है हमारे पास, बराबर, कि जो they are possesses both the properties of metals and non-metals, they are called metalloids, okay, उसको metalloids बोलते हैं, metals and non-metals। examples are boron, silicon, then germanium, ये सभी metalloids है, बराबर, boron, silicon, germanium। चलो यहाँ तक सबको पता चला है बेटा? एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम किसी को? श्योर, आई होप यू अंडरस्टैंड। Very good. So shall we start compounds? Okay. So a compound is a substance composed of two or more element, बराबर, दो या दो से ज्यादा elements जब एक दूसरे से मिलते हैं, composition करते हैं, so they will make compounds। compound मतलब इकट्ठा होना, बराबर, combine होना, इसको हम compound बोलते हैं। so compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। fixed proportion में chemically वो दोनों जब combined होते हैं, two or more elements, तो they will make compounds, बराबर। so see here one activity is given, what do we get when two or more elements are combined? बराबर, चलो एक दूसरे से मिलते क्या होता है? to divide the class into two groups, give 5 gram of iron filling and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the groups। चलो group 1 क्या करेगा? mix and crush iron fillings and sulfur powder, बराबर, दोनों को मिक्स करना है, क्रश करना है।
Group 2, mix and crush iron fillings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. एकदम लाल कलर का हो जाए उस तरह से उसको गर्म करना है. Remove from flame and let the mixture cool. अभी फ्लेम से उतार दो उसको और अभी उसको कूल डाउन होने दो. चलो, आपको फर्स्ट में क्या दिखेगा वो मुझे बताओ. क्या वो एकदम मिक्सअप हो जाएगा फर्स्ट में? आपने सिर्फ दोनों के पाउडर को मिक्स किया है, नहीं होगा ना बेटा, राइट? चलो सेकंड में क्या होगा? दोनों को मिक्स किया, उसके पाउडर को फिर हीट भी दिया, फिर उसको मॉइस्चन किया, इतना पिघाल दिया कि रेड कलर का हो गया, एकदम मिक्स हो गया ना वो दोनों, बराबर? चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड. बराबर? ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स. Add carbon disulfide to one part of the material obtained, stir well and filter. Add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained. बराबर? Perform all the above steps with both the elements, iron and sulfur. दोनों से separately भी ये सब भी आपको करना है. चलो तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा कि उस दोनों को मैग्नेट नजदीक लाके दोनों को सेपरेट करोगे. तो दोनों का जो पाउडर लिया उसमें से मैग्नेट अलग होगा, अरे सॉरी आयन अलग होगा कि नहीं होगा? Fe. यस, बराबर. बाय मैग्नेटिक मेथड यू कैन सेपरेट देम, राइट? देन उसके बाद क्या होगा? सब भी आंसर आपको दिए हुए हैं. यस, बराबर. चलो सेकंडली आप क्या करोगे? उसमें हीट किया, बराबर. अभी उसके अंदर क्या डालना है हमको? एक तो कार्बन डाइसल्फाइड, एक दो पार्ट बनाने हैं, उसमें एक पार्ट में डाइसल्फाइड, बराबर. एंड दूसरे पार्ट में क्या डालना है? वेरी गुड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. वेरी गुड, बराबर. सो यू जस्ट रीड इट एंड गिव मी आंसर इन नेक्स्ट सेशन. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसका क्या होता है, बराबर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज ऑल्सो. तो बी रेडी बेटा, थोड़ा पढ़ लेना एक्सरसाइज भी. वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, तो आज का यहाँ तक रखते हैं. एंड थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड प्लीज थोड़ा रीड करना. स्टे सेफ, स्टे होम बेटा.